OLE, the utopian world of online education. Hello student, welcome to OLE. I am your economics teacher. Today we are going to discuss a very interesting topic, collection of data. So while discussing this topic, we will cover three major points. Okay, so let's understand that what we will discuss today. First, we will cover what is data. Okay, we'll try to understand why we calculate data, what's the meaning of data, how data impact in like giving the information. So we will discuss what the data is. Okay, then we will discuss sources of data. Okay, while discussing sources of data, we will cover primary source and the secondary source, and we will try to understand how we actually collect the data from these sources. Okay, now third, we will discuss methods of collecting data. Okay student, so these are the three important points that we should understand in this particular topic. Now first, let's try to understand what the data is. Data actually में है क्या? So data in simple language we can say it's a set of information. What it is? It's a set of information. Now, why I'm not mentioning here a particular name like it's a set of numbers or it's a set of collected numbers? So here I would like to mention, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ये लाइन लिखी क्यों है. Because a data can be calculated in terms of numbers, or we can say in terms of approximate number. ओके, हम ये हमेशा नहीं मान सकते कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो एक फिक्स्ड कैलकुलेटेड या परफेक्ट सेट ऑफ नंबर होगा. वो नंबर हो सकता है और वो एक अप्रॉक्सीमेट सेट ऑफ नंबर भी हो सकता है. ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेशन फिगर भी आ सकता है. बट द बेसिक थिंग इज कि वाई वी नीड द डेटा, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट. हमें डेटा कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? सो data is basically used for what? First, we use data to analyze. ठीक है, अच्छा अब हमें कोई डेटा मिला, हमने उसको एनालाइज किया. नाउ एनालाइज क्यों किया? उसका रीजन क्या था एनालाइज करने का? सो द आंसर इज सो दैट वी कैन मेक some productive decision on it. Some productive decision on it. Okay, बहुत सिंपल है स्टूडेंट. यहाँ आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल डेफिनेशन नहीं देनी है. आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं. इट्स अ सेट ऑफ नंबर. It may be it's a set of information. It may be in terms of numbers or maybe in a approximate number. Why we use or we collect the data to analyze so that we can make some decision, productive decision on it. ऐसा नहीं कि हमने जो decision लिया उसका कोई motive या उसका कोई agenda ना हो. डेफिनेटली जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर मोटिव के बेसिस पे लिया जा रहा है. ठीक है, तो हमारा एम क्या रहता है डेटा कलेक्ट करने का, ताकि हम कोई एक प्रोडक्टिव डिसीजन ले सकें. ठीक है, इसको आगे और समझते हैं कि डेटा किस तरीके से कलेक्ट करने पर हम डिसीजन कैसे मेक करते हैं. तो मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको ये समझाना चाहूँगी. कमिंग टू दैट, सो स्टूडेंट लेट अस अंडरस्टैंड विथ सम बेसिक एग्जाम्पल्स. ओके, सो हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि लेट टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन नेम्ड ABC. ठीक है, उसकी 35,000 पर मंथ सैलरी है. ठीक है, और ये सैलरी उसकी कब थी? 2018 में. ओके, जब अपॉइंटमेंट हुआ था. देन ही गेट
40,000 per month in 2019. In 2020, due to COVID, his salary has been decreased because of COVID impact on his company, and now he is at that moment he is getting his salary on his account is approximately 20K per month. That is the 50% of the above amount. But in 2021, his company again revamped and increased his salary from the last drawn, that is, this is his last drawn, and he got the increment and now his salary is 45K per month. So student, ऐसे डेटा को जब आप स्टडी करोगे तो ये बहुत ही टिपिकल लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर डेटा को एक ग्राफिकल फॉर्म में समझें तो ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ मार्क कर देती हूँ, दैट इज सैलरी नोटिफिकेशंस, सैलरी पॉइंटर्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा सैलरी और यहाँ पर मैंने लिखा ड्यूरेशन in terms of years. Okay, then I have write 2018, 2019, 20 and 2021. अब इस इंफॉर्मेशन को हम इस ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। सो दी स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट 35K, तो ऑब्वियसली वो जीरो से तो अबव है, तो यहाँ पर मैंने 35K 2018 में यहाँ मेंशन किया। Then 40K, if this is the 35K, this will be the 40K, okay, and this will be the 45K, but 20K is lie between something here and here will be the 45K, and then coming, sorry, this will be the 40K, and then coming to this last one, which is 45K. If you want to write down the exact figure, you can. Now, if I try to just draw the, or we can say jot the points of the salary structure of ABC, then what you will observe? यहाँ पर आपको इस ग्राफ को देखकर क्या पता चल रहा है? आपको ये दिख रहा है कि ABC का जो सैलरी ग्रोथ स्ट्रक्चर है, सैलरी ग्रोथ स्ट्रक्चर, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ से आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये क्लियर हो सकता है कि कब उसका सैलरी ग्रोथ स्ट्रक्चर पीक पे गया है और कब लैग कर रहा है, कब लीड कर रहा है, कब लैग कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डायरेक्शन में देखिए लीड कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, देन अगेन लीड कर रहा है। सो डेटा एक्ट्स इन अ सिमिलर मैनर। डेटा को भी जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम किसी डिसीजन पे आ सके। जिस तरीके से हम इसका ग्रोथ स्ट्रक्चर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी कंपनी का ग्रोथ स्ट्रक्चर डेटा के बेसिस पे ही करती हैं, ठीक है। सो डेटा प्लेज अ मेजर रोल, सो दैट्स वाई कलेक्शन ऑफ डेटा इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम उसको कलेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो जो हमारा सेकेंड टॉपिक है कंटिन्यूशन में इसी के, वो यही है कि हाउ टू कलेक्ट द डेटा, how we can say that this data is authentic and this data is not authentic. We have to make certain graphs on it, or we can say we have to analyze the data and try to understand what's the source of the data, so that we can easily compare the data is authentic or not, and we can understand through the sources of it that data is authentic or not. So the next topic we will continue with the discussion is the sources of data. Coming to that, so student, now we will understand the sources of data. So sources of data is comprises of two parts. Okay, first one is primary source,
and second one is secondary source. Okay, so student, let us understand what is the primary source. ये primary source का मतलब क्या है? पहले मैं थोड़े पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि आपको कनेक्ट करना इजी हो when we wind up the lecture. So primary source is basically when data is collected by investigator. Okay? जब इन्वेस्टिगेटर के थ्रू डेटा कलेक्ट होता है तो उसे हम प्राइमरी सोर्स के थ्रू कलेक्टेड डेटा कहते हैं, या व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिन. ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी उसमें इट प्ले अ मेजर रोल. एंड इन्वेस्टिगेटर एज वेल. आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों करेक्ट हैं. ठीक है, अब हम समझते हैं एक्चुअल में यहाँ पर है क्या. सो बेसिकली टेक द एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स गवर्नमेंट wants to know or collect the data of BPL families. अब सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि उनको ये पता चले कि BPL फैमिलीज इंडिया में कितनी हैं. ठीक है, बिलो पावर्टी लाइन कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक है, और गवर्नमेंट को वो डेटा चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिसी या कोई स्कीम फ्रेम कर सके. ठीक है, बेसिकली ऐसा ही होता है. गवर्नमेंट को डेटा चाहिए तभी उस बेसिस पे वो कोई डिसीजन ले पाएगी. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक है, सो गवर्नमेंट के पास होते हैं उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव. Now student, please understand here representatives are not belong to political parties. Okay, here I will write the government staff. Okay, यहाँ पर आप गवर्नमेंट स्टाफ को रिप्रेजेंटेटिव में कंसिडर करेंगे और यही नेम एक्चुअल में इन्वेस्टिगेटर नेम से प्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट स्टाफ होता है, अब ये गवर्नमेंट स्टाफ एक्चुअली में आता कहाँ से? या तो जितने भी कलेक्ट्रेट ऑफिसेस होते हैं उसके मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्टाफ में आ जाएंगे. ठीक है, या फिर हम इसमें क्या कंसिडर कर सकते हैं, जितने भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस हैं उसके जो टीचर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे. ठीक है, स्कूल कॉलेजेस एम्प्लॉयज़. So basically they are what? They are actually a government servant और government employee. ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी इन्हें करना पड़ेगा. अब ये एक्चुअल में क्या करेंगे? ये विजिट करेंगे. कहाँ पर विजिट करेंगे? मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, एम्प्लॉयज़ को ई से डिनोट कर रही हूँ. ठीक है, अब ये विजिट करेंगे, इनको एरिया दिया जाएगा. अब बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि बिलो पावर्टी लाइन सिर्फ विलेज में एग्जिस्ट करें. ठीक है, ऐसा कोई भी केस नहीं है कि हम ये मान के चलें कि नहीं विलेज होगा तो बिलो पावर्टी लाइन होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. तो गवर्नमेंट कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को विलेज में भेजेगी, कुछ एम्प्लॉयज़ को टाउन्स में भेजेगी, और ये जो डेटा लेकर आएंगे वो कोलैट होकर अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट का डेटा बन जाएगा. ओके, what they are doing, they are sending their investigators where? To village, town, and these collated data will submitted where? On district head, that is the collector. ठीक है, अब ये जो डेटा जा रहा है ये कैसे जा रहा है? यहाँ पर एक्चुअली ये एम्प्लॉयज़ कर क्या रहे हैं? तो एम्प्लॉयज़ आर एक्चुअली गोइंग डोर टू डोर. कहाँ जा रहे हैं? हर घर पे जा रहे हैं. वहाँ पर उनकी जो सालाना आय होती है, दैट इज एनुअल इनकम या मंथली इनकम या वीकली इनकम या डेली इनकम, जो भी उनके इनकम सोर्स है उसको वो नोट डाउन करती है. ठीक है,
नोट डाउन कैसे करेगी? देखिए, अगर वहाँ उनके पास कोई परमानेंट वेजेस नहीं होंगे तो कोई सैलरी स्लिप नहीं होगी, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा. दे हैव द राशन कार्ड एंड दे हैव द लाइक वट एवर द मिनिमम वेजेस क्राइटेरिया एज पर द गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग उनके पास अर्निंग आ रही होगी, तो वो उसी का एविडेंस देंगे. किसको एविडेंस देंगे? इन एम्प्लॉयज़ को एविडेंस देंगे. अब ये एविडेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सरकार कैसे मानेगी कि आपने जो डेटा लाया वो करेक्ट है कि नहीं? तो सरकार एक फॉर्मेट बना के देती है. किसको? एम्प्लॉयज़ को. किस काम के लिए? ताकि वो ये जो डेटा लेकर आए उसको प्रूव कर सकें कि वो करेक्ट है कि नहीं. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ आपको ये समझना है कि डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वो एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है? ओरिजिन से आ रहा है. या ये जो एम्प्लॉय जो है वो हैं क्या एक्चुअल में? इन्वेस्टिगेटर है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो हमने मेंशन किया था इसकी डेफिनेशन में, व्हेन डेटा इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, सो हियर एम्प्लॉय आर द इन्वेस्टिगेटर, राइट? और वी कैन से when data is collected from its origin. So what's the origin? ये जो डोर पे जा रहे हैं ये origin है. ठीक है, तो डेटा जब ओरिजिन से कलेक्ट होता है या इन्वेस्टिगेटर के थ्रू कलेक्ट होता है तो वो किस में कंसिडर किया जाता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा. ओके, सो इसको आप ईजिली ये पॉइंट जॉट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. ठीक है, जब मैं आपको सेकेंडरी सोर्स बता दूंगी तो हम एक कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे बिटवीन प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, वो आगे चल के हम करते हैं. ठीक है, इधर हमें बस ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू दी सेकेंडरी सोर्स. नाउ स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा. So again I would like to present some lines over here. When data is collected by some companies slash organization slash agencies, then it is termed as secondary data. Or we can say when the data is fetched from other entity, it is termed as secondary data. अब स्टूडेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जब हम डेटा किसी कंपनी के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी एजेंसीज के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी डेटा में आ जाएगा. ठीक है, हम प्रीवियस एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट करते हैं. ठीक है, अब गवर्नमेंट नीड्स द डेटा ऑफ व्हाट? किसका डेटा चाहिए था गवर्नमेंट को? बीपीएल फैमिलीज का. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने पहले अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि जाइए भाई आप डोर जाइए और डेटा कलेक्ट करिए. बट द थिंग इज दैट इस पॉइंट पे उसे सेकेंडरी डेटा पर अप्रोच क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसके जो पास एम्प्लॉयज़ हैं वो लिमिटेड हैं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऑलरेडी कोविड का टाइम है और उनको ये डेटा भी चाहिए. अब कोविड के टाइम पे उन्होंने अपने सेम एम्प्लॉयज़ किसी दूसरी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज में इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, तो उनके पास तो रिसोर्स लिमिटेड हो गई है, बट उन्हें ये डेटा चाहिए है क्योंकि उन्हें इसी बेसिस पे स्कीम निकालनी है, नहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे उनको सर्विसेज और गुड्स. तो अब उन्होंने क्या किया? किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एजेंसी को अप्रोच किया. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वन एनजीओ. उन्होंने बोला कि हम इस XYZ एनजीओ को इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और इनसे बीपीएल फैमिलीज़ का डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब एनजीओज़ के पास जो डेटा था वो बीपीएल फैमिलीज़ का तो था और उन्होंने सरकार को दे दिया. बट लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग वेयर द डेटा लैग्स ओवर हियर. एनजीओ ने जो डेटा कलेक्ट किया था उन्होंने ये कलेक्ट किया था कि जो उनका एरिया है जहाँ पर उन्होंने सर्वे किया था, इनका मोटिव क्या था सर्वे का? उन्होंने न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए सर्वे किया था कि एक घर पर
कितने लोग हैं जिनके न्यूट्रिशन वैल्यू अप टू द मार्क है कि नहीं, ठीक है। अब जब उन्होंने न्यूट्रिशन वैल्यू को अपना पैरामीटर रखा तो उन्होंने भी जो सर्वे किया वो इन्हीं 3 लेवल पे किया, विलेज लेवल पे भी किया, टाउन पे भी किया, क्योंकि न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि हमने मान लिया कि विलेज एरिया पे ही न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी, वो किसी भी एरिया पर कम हो सकती है, ठीक है। और इन्होंने ये डेटा क्लब करके रखा था कि हम ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि ये कोलैट हो जाए और हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सरकार ने जो डेटा लिया, उन्होंने लिया बीपीएल फैमिली का। तो जब मैं इस पर्टिकुलर डेटा को ब्रेक करूंगी तो इस पर्टिकुलर डेटा में इन्होंने जो एनजीओ ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसमें एक सेक्शन बीपीएल भी था, ओके। बाकी जो सेक्शन था वो, अब बीपीएल किसका पार्ट था मान लेते हैं, बीपीएल टाउन के भी पार्ट में भी आ रहा था और विलेज के भी पार्ट में आ रहा था, ठीक है। और ये जो डेटा आ रहा है वो अर्बन और सब अर्बन का आया है, ठीक है। सो ये जो डेटा आया है, कंप्लीट डेटा जो एनजीओ का था उसमें सब अर्बन, अर्बन, विलेज, टाउन सारे एरिया थे और इनमें से कुछ कुछ पार्ट जो था हर एरिया में बीपीएल थे। तो अब गवर्नमेंट को जो डेटा मिला उन्होंने ये चीज़ सेग्रीगेट नहीं की होगी, सॉर्टिंग नहीं की होगी, उन्होंने बल्क के डेटा उठा के गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जहाँ जहाँ बीपीएल वाला डेटा एग्जिस्ट कर रहा था वो गवर्नमेंट ने ऐड कर लिया, ठीक है। सो द ड्रॉबैक इन सेकेंडरी डेटा इज दैट वी आर नॉट क्वाइट श्योर, या इसमें कोई शॉर्ट रिजल्ट नहीं है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो कंप्लीटली ऑथेंटिक होगा। इट्स नॉट नेसेसरी, मीन्स कंप्लीटली ऑथेंटिक नहीं होगा। यहाँ ऑथेंटिसिटी क्या होती है, लैक करती है। क्यों? क्योंकि आप एक सेकेंडरी बॉडी पर डिपेंड हो रहे हो डेटा कलेक्ट करने के लिए और मे बी इस बॉडी का एजेंडा डिफरेंट होगा डेटा कलेक्ट करने का। माइट भी आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो करेक्ट भी हो सकता है, माइट भी रॉन्ग भी हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे या आपके पास उतना टाइम नहीं था और आपको जल्दी डेटा चाहिए था, तो आपने इस एजेंसी से कम्युनिकेट करके ये डेटा ले लिया, ओके। So student, the thing is here you should understand that what is the one major difference between primary data and secondary data और primary data collection और secondary data collection। प्राइमरी में हमें ये समझ में आया कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो ओरिजिनल है, वो ऑथेंटिक है, क्योंकि हम सोर्स तक खुद जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा में क्या हो रहा है, हम सोर्स तक किसी चैनल के थ्रू जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ ऑथेंटिसिटी क्या होती है, लैक करती है, ओके। नाउ लेट्स कंपेयर, make a compare chart between primary data and secondary data. Coming to that, so student, let us compare between the primary data and secondary data. So let's make one comparison chart. Here I am mentioning primary and here secondary. So let's have a look on these pointers that I have mentioned over here. यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट मेंशन किए हैं, which is first one is original, second one is adjustment, third one is costly and fourth one is time saving. Okay, so student according to you, आपको क्या लगता है कि फर्स्ट जो पॉइंट है ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी या कहना चाहिए ऑथेंटिसिटी किस डेटा में ज़्यादा होगी? अभी तक हमने जितना भी एक्सप्लेनेशन समझा है उसके अकॉर्डिंग, सो एज पर द डेफिनेशन ऑल्सो जो डेटा ओरिजिन से आ रहा है तो उसकी ओरिजिनलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, ऑथेंटिसिटी ज़्यादा अच्छी होगी या ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा होगा? तो यहाँ पर मैं लिखूंगी प्राइमरी डेटा इज मच मोर ऑथेंटिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट आपको कहाँ करनी पड़ रही है डेटा के साथ, प्राइमरी के साथ कि सेकेंडरी के साथ? डेफिनेटली जब मैं किसी डेटा को खुद जाकर कलेक्ट कर रही हूँ तो मैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सोर्स तक खुद जा रही हूँ, डेटा कलेक्ट कर रही हूँ और ऑथेंटिसिटी की गारंटी भी मेरे हैंड में है, तो यहाँ तो एडजस्टमेंट का कोई चांस ही नहीं है।
एडजस्टमेंट हमें कहाँ करना पड़ रहा है? सेकेंडरी में, क्योंकि यहाँ पर हम किसी पार्टी पर डिपेंड है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है उस बेसिस पे हम डिसीजन अपना बना रहे हैं या डिसीजन पॉइंट आउट कर रहे हैं या डिसीजन डिजाइन कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जो एडजस्टमेंट बन रहा है या एडजस्टमेंट आएगा वो सेकेंडरी डेटा में आएगा, ठीक है, प्राइमरी में नहीं आएगा। देन कमिंग टू द कॉस्टली, सबसे ज़्यादा कॉस्टली डेटा कौन सा होगा, प्राइमरी के सेकेंडरी? अब स्टूडेंट, इफ़ आई एम द इन्वेस्टिगेटर एंड आई एम गोइंग टू डोर, मैं अपना व्हीकल लेके जा रही हूँ, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपना पूरा डे इन्वेस्ट कर रही हूँ, सो डेफिनेटली मेरे पर डे का जो एफिशिएंसी आएगा वो कुछ ही डेटा कलेक्ट होगा बट वो ओरिजिनल होगा, और जो भी चीज़ ओरिजिनल होती है वो अल्टीमेटली कॉस्टली होती है। तो डेफिनेटली जो प्राइमरी डेटा होगा वो क्या होगा, कॉस्टली होगा। सेकेंडरी डेटा कंपैरेटिवली कम कॉस्टली होगा, क्योंकि ये कोई सोर्स दे रहा है। अब सोर्स ने जितना उस डेटा का प्राइस रखा है वो तो हमें पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा मिल सकती है आपको, क्योंकि सोर्स को भी अपना डेटा बेचना है जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो डेटा मिलेगा वो कम कॉस्टली होगा कंपैरेटिवली टू दी प्राइमरी वन। टाइम सेविंग तो डेफिनेटली सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, ऑथेंटिसिटी के लिए डेटा को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना पड़ता है और कीनली कंडक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर दी 4 important points which you can easily differentiate between primary and the secondary collection of the data. So student, now we are winding the topic. In the next we will continue with the how to collect the data or how to what are the sources of collecting data. Thank you so much.